हाय एवरीवन। आज हम एक स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ए मैनुअल फॉर मेडिकल थेराप्यूटिक्स सेवेंथ एडिशन बाय संगीता शर्मा एंड जी.आर. सेठी। ठीक है, इस बुक से पढ़ेंगे। इमरजेंसी चैप्टर नंबर 2 इमरजेंसी। इमरजेंसी में एक केस आज पढ़ेंगे जो होता है बॉर्न के ऊपर। ठीक है, सो बॉर्न बेसिकली क्या होता है? सो बॉर्न्स आर मेजर preventable cause of morbidity and mortality. They can be due to a variety of cause, namely thermal, जो कि होता है फ्लेम, ड्राई हीट, स्कैल्ड्स फ्रॉम द हॉट लिक्विड्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन। सो बहुत टाइप के बॉर्न होता है। थर्मल बॉर्न होता है, जैसे कि आपका फ्लेम होता है, ठीक है, आग होता है। ड्राई हीट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बॉर्न होता है, केमिकल बॉर्न होता है, रेडिएशन बॉर्न होता है। द डेप्थ ऑफ अ थर्मल इंजुरी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर of the burning agent and the duration of a contact. For electrical burn, the damage depends upon a number of factors like voltage, resistance of various tissue, type of current, alternating या फिर direct, amperage, etc. For a chemical burn, the depth of injury depends upon the nature, मतलब एसिडी या फिर अल्कली, and the concentration of a chemical. Apart from the duration of its contact with body tissue, radiation burn have become rare because of improved technology of delivering radiation to patient and stringent safety measure in nuclear reactor, जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है, साइलेंट फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ बॉर्न हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 डिग्रीज सी बिलो. The deeper the burn wound and the larger the burned area, greater is the morbidity and mortality. Morbidity मतलब रोग इंडिकेट करेगा, मोर्टेलिटी मतलब आपका डेथ रेट। ठीक है, ईयरली कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड शॉक, टोक्सेमिया, slugging of a mucous membrane, gastrointestinal tract and respiratory tract inhalational injuries, acute renal failure and hematemesis मतलब कर्लिंग अल्सर, पेन, एंजाइटी, फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन, local tissue edema and infection. Burn involving face, nose, mouth, neck may obstruct the airways. Circumferential burn on the chest may cause breathing problem. Late complications include protein losing enteropathy, secondary hemorrhage, hypertrophic scars, keloids, and contracture, especially burn to the area of the body with flexion creases. creases. I do not know what is the pronunciation. Okay, creases I think. ठीक है, circumferential burn of arms, legs, fingers and toes may put the survival of the extremities at risk. ट्रीटमेंट क्या करोगे? The treatment of a burn depends upon the depth of injury and the extent of affected body surface area, मतलब BSA, body surface area involved.
The severity of a burn determine the type of a treatment as well as the place of a treatment. Depending on the extent of a burning of a layer of skin and a tissue, burn are classified into first, second, third, and fourth degree burn as given below. The deeper the burn, the larger the burned area, the more serious the burn. First degree burn. फर्स्ट डिग्री बर्न आर द बर्न ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब आपका स्किन का जो ऊपर लेयर है, ठीक है. एग्जाम्पल सॉर्न बर्न हो गया. आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, लाल लाल पड़ जाना, ड्राई सूखा पड़ जाना, पेन थोड़ा बहुत पेन होगा, इचिंग कुंडई हेबा, एंड माइनर स्वेलिंग थोड़ा बहुत स्वेलिंग होगा, इडिमा टाइप का, ठीक है. Peeling occurs as it heals enough to 5 days without scarring. Need home care and need a moisturizing cream and oral antihistaminic for itching. However, if a larger area is involved on hand, feet, face, groin, buttock, or a major joint, seek medical attention. Second degree burn are superficial, involving papillary dermis, or deep partial thickness involving reticular layer. Burns that involve epidermis and part of the dermis as well. The former are pink and moist in appearance and painful. They can be blister formation if overlying epidermis is intact. It is usually healed in 10 to 21 days with epithelialization from the sweat and sebaceous gland without scarring. Deep dermal burns are waxy white in color and take up to 6 weeks to heal with hypertrophic scarring. They are also at risk of a conversion to still deeper burns due to infection and drying. If the burn area is larger or cover the hands, feet, face, groin, buttock, or a major joint, treat it as a major burn and get medical help immediately. First and second degree burn are also called as partial thickness burn because given proper treatment by dressing they can heal on their own. उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न इन्वॉल्व एपिडर्मिस and whole of dermis and hence there is no chance of healing except by contracture formation without surgical intervention in the form of a skin grafting. The burn skin is tough, dry, inelastic, translucent, and parchment-like with thrombosed vein visible underneath and scar. Blister do not form and these burns are painless because of a complete destruction of all nerve ending. Fourth degree burn involve the subcutaneous tissue and even musculotendinous
and neurovascular structure and the bones as well. Electrical burn are very commonly fourth degree and have a great morbidity mortality. इलेक्ट्रिकल बॉर्न अगर होगा तो वो डेथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, तो बी सीरियस. थर्ड एंड फोर्थ degree burn comes under the category of a full thickness burn as they need surgical intervention for the wound healing and the patient's recovery. जनरली थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी जो बर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है एंड इसमें हमें सीधा सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, मतलब ये सर्जरी डिपार्टमेंट का काम हो गया. Assessment and triage of a patient suffering from burn is emergency department and shown in figure 2.8 and burns classification based on severity जो कि टेबल 2.3 में समझा दिया गया है. Now assess the severity of a burn and burn extent estimation. The total body surface area, that is TBSA, burned can be assessed by various methods. Walensey rule of 9 is most commonly used method to estimate the area in adults and children, figure 2.9. okay, ठीक है. Infant and a toddler have a bigger head. Infant and toddlers have a bigger head while their lower extremities are small. Lynch and Blocker rule of 5 is used for them. Head and neck 20%, anterior and posterior trunk 20%, each, while all the four extremities are 10% each. For scattered bone, rule of palm, also called as rule of hand, is used where the palmar surface of a patient's own hand is equal to 1% of the total body surface area. The severity of a burn determined whether the patient can be treated on an outpatient basis or needs admission in a general hospital or at a specialized burn center. Patients with burn can be traditionally divided into three categories based on the severity of their burn: minor, moderate, critical, जो कि टेबल 2.3 में दिया गया है. Okay. Causes of a death in burn patient. A burn patient may die due to primary neurogenic shock, electrocution, ventricular fibrillation, cardiac asystole, secondary hypovolemic shock, acute curling, ulcer जिसे हेमोरेजिक शॉक बोला जाता है, एस्फेजिया ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, laryngeal edema, acute renal failure, associated head and other injuries, tetanus, burn wound, toxemia and sepsis, cachexia, I know what the pronunciation, cachexia या cachexia. Okay, anyways, थोड़ा pronunciation का problem है. Anemia and hypoproteinemia, etc. Fasted at the site of injury or accident. For all thermal burn, जितने भी थर्मल बर्न होता है, ऑल टाइप ऑफ थर्मल बर्न, द स्लोगन इज पोर वाटर ऑन बर्न. मतलब जहाँ पर जिस जगह पर आपको बर्न हुआ है, जितने भी थर्मल बर्न, मतलब थर्मल बर्न मतलब आग के चलते
जो आपका बॉर्न हुआ है उसमें से सीधा गोल्ड स्टैंडर्ड रोल होता है पुअर वाटर ऑन द बॉर्न, उसी जगह पर पानी डालना। द एम इज टू टेक, ये किस लिए किया जाता है? द एम इज टू टेक द विक्टिम अवे फ्रॉम द सीन ऑफ अ फायर एंड स्मोक। फॉर ऑल थर्मल बर्न द स्लोगन इज pour water on burns. The aim is to take the victim away from the scene of a fire and smoke. Extinguish the burning clothes, etc., and bring the temperature of the skin टू एटलीस्ट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस बाय रिमूविंग क्लॉथिंग, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस बाय रिमूविंग क्लॉथिंग एंड इरिगेटिंग द बर्न्स। Extinguish flame by allowing the patient to roll on the ground or by applying a blanket or by using water or other fire extinguish liquid. Instead of running, it is better to roll and try to extinguish fire. Now, assessment and management approach of a patient suffering from burns in emergency department. Perform primary and secondary survey. Obtain clear history of a burn, मतलब mechanism of injury, कब हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब हाउ एंड व्हेन बर्न्ड, एनी फर्स्ट एड, मतलब कब तक फर्स्ट एड आप ले रहे हो, एंड क्या फर्स्ट एड लिया है, मतलब व्हाट एंड हाउ लॉन्ग। कंटिन्यू कूलिंग, कूलिंग को आपको कंटिन्यू करना है। इफ़ विद इन 3 आवर ऑफ अ बर्न, अगर बर्न 3 घंटे के अंदर हुआ है तो आपको कंटिन्यू कूलिंग करना चाहिए। ओयर क्लॉथेस रिमूव, मतलब अगर कोई बॉर्न केस पेशेंट वाला है तो ये पूछा जाता है कि आपने क्लॉथेस सारा रिमूव किया है या नहीं किया है। गिव अप्रोप्रिएट पेन रिलीफ, उसके बाद पेन को रिलीफ करने के लिए अप्रोप्रिएट उसको पेन किलर देना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेस परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया यूजिंग रूल ऑफ 9, यूजिंग रूल ऑफ 9, ठीक है। उसके बाद उसका 3 पैरामीटर आएगा, एक होता है क्रिटिकल, एक होता है मॉडरेट, एक होता है माइनर। अगर क्रिटिकल आएगा तो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बॉर्न अडल्ट में अगर पाया जाता है, अगर ये ग्रेटर दैन 25% ऑफ टीबी ऐसे को ऐसे अगर है, ठीक है, मतलब सेकेंड थर्ड डिग्री बॉर्न जो होता है, जो कि एपिडर्मिस डर्मिस दोनों को मतलब कवर करता है, एंड ये थोड़ा ज़्यादा सीरियर होता है। हमारे पास 4 टाइप का बॉर्न कैटेगरी है, तो अगर सेकेंड थर्ड डिग्री अगर बॉर्न हो रहा है अडल्ट के केस में, तो ये अगर 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया है तो ये क्रिटिकल समझा जाएगा। सेकेंड थर्ड डिग्री बॉर्न इन चिल्ड्रेन, अगर ये ग्रेटर दैन 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया हो रहा है तो ये क्रिटिकल को इंडिकेट करेगा। एंड सेकेंड और थर्ड डिग्री बॉर्न इन नियोनेट्स, नवजात जो शिशु होता है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर दैन 3% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर इंडिकेट कर रहा है तो ये भी क्रिटिकल समझा जाएगा। एनी प्रायोरिटी एरिया आर इन्वॉल्व, दैट इज फेस हो गया, नेक हो गया, हैंड्स हो गया, फीट हो गया, पेरिनियम हो गया, जेनाइटल एरिया हो गया, एंड मेजर जॉइंट जो होता है। तो इस एरिया में जो भी बॉर्न होता है, एनी प्रायोरिटी एरिया, हमारे बॉडी में एक प्रायोरिटी एरिया होता है जो कि फेस को समझा जाता है, नेक को समझा जाता है, हैंड, फीट, पेरिनियम, जेनाइटल एरिया, एंड हमारे बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, अगर वहाँ पर बॉर्न होता है तो वो
क्रिटिकल के केस में आ जाएगा। कॉज्ड बाय केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब जब बादल से आप जो होता है ना बरसात के दिन, तो वो जो लाइटनिंग के कारण जो भी बर्न होता है तो वो भी हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। या फिर नॉर्मल जो राइटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी रूम में हम यूज करते हैं, कई बार क्या होता है रूम में कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने से या कुछ मेजर इलेक्ट्रिकल आउटब्रेक होने से जो भी बर्न होता है उसके चलते जो पेशेंट इसका शिकार बनते हैं तो वो क्रिटिकल समझा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हम सिंपलीफाई अगर कहें, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी बर्न हुआ है वो हमारा क्रिटिकल डिपार्टमेंट का काम है, मतलब क्रिटिकल समझा जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद आपका आ जाएगा एनी सर्कमफेरेंशियल बर्न। ओके, ये हर एक वर्ड को हम बाद में डिक्टेट करेंगे, जो भी वर्ड हमको नहीं आया है। देखो मुझे भी बहुत सारे वर्ड मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमें पता नहीं है वो वर्ड हम आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, क्योंकि बुक रीडिंग हाईली रिकमेंडेड है। हम हमेशा क्या कहते हैं, कोई भी मेडिसिन के बारे में जब मैं आपको पढ़ाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर का परामर्श लीजिए। पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब कंप्लीट पूरा मेडिसिन का दर्शन दूंगा। उसके बाद फिर भी मैं कहूँगा कि डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ मतलब जानोगे और उसके बाद कहोगे डॉक्टर का परामर्श अगर लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्यों। ये कोई भी फार्मेसी स्टूडेंट कह सकता है कि हर चीज़ जानेंगे और बाद में कहेंगे डॉक्टर को कंसल्टेशन करो, तो फिर पढ़ेंगे क्यों। अगर डॉक्टर का कंसल्टेशन करना है तो फिर पढ़ेंगे क्यों, सारा काम तो डॉक्टर करेगा, तो फिर पढ़ना क्या है। ये आपके अंदर ये मोटिव आना नहीं चाहिए और मैं यही चाहता हूँ। वरना कल को कोई डॉक्टर कहेगा फार्मासिस्ट को कि तुम जानते क्या हो। तो ये एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। एनीवेज, born with concomitant trauma or a pre-existing medical condition। born with concomitant trauma और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन में पूरे मतलब एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को समझाऊंगा, ठीक है। ट्रॉमा क्या होता है ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग मतलब एक एक सेंटेंस का मीनिंग हम समझेंगे, तभी ये चैप्टर हमारे दिमाग में उतरने वाला है, वरना तो नहीं, ठीक है। देन बॉर्न विथ कॉन्कोमिटेंट ट्रोमा एंड अ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन जो होता है वो हमारे क्रिटिकल को समझा जाएगा। देन बॉर्न विथ एसोसिएटेड इनहेलेशनल इंजुरी। इनहेलेशनल इंजुरी मतलब मान लीजिए आपका बॉडी पूरा बॉर्न हो गया, उसके चलते इंजुरी हो जाएगा, तो आपने इनहेलेशन करने के कारण जो भी चीज़ ये होता है वो क्रिटिकल में समझा जाएगा, ठीक है। सस्पेक्टेड नॉन एक्सीडेंटल इंजुरी। सस्पेक्टेड नॉन एक्सीडेंटल इंजुरी मतलब आप सस्पेक्टेड कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो, और नॉन एक्सीडेंटल इंजुरी अगर आ रहा है तो ये भी क्रिटिकल का काम है, ये क्रिटिकल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। देन बॉर्न्स विथ मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, फ्रैक्चर, इलेक्ट्रिकल बॉर्न, जितने भी इलेक्ट्रिकल बॉर्न हो गया, फ्रैक्चर हो गया एंड मेजर सॉफ्ट टिश्यू अगर इंजुरी अगर हो रहा है। देखो यहाँ पर आपका एनाटॉमी घुस गया, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए मेजर सॉफ्ट टिश्यू क्या क्या है, ठीक है।
तो जब आप मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, सर्जरी के बारे में पढ़ते हो, देखो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है मेजर सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। प्रेगनेंसी विथ क्यूटानियस बॉर्न, मतलब प्रेगनेंसी के साथ अगर क्यूटानियस बॉर्न अगर ये हो जाएगा तो ये भी हमारा क्रिटिकल के केस में आ जाएगा। देन हमारे पास 3 टाइप का होता है ना, क्रिटिकल, मॉडरेट, माइनर। किसके बेसिस में होता है? एक्सेस परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया यूजिंग रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 को बेस करके 3 पैरामीटर आता है, क्रिटिकल, मॉडरेट, माइनर। 3 पैरामीटर टोटल आता है। क्रिटिकल क्या क्या होता है वो आपको हमने बता दिया। नाउ कम टू द मॉडरेट। मॉडरेट हम किसको कहेंगे? सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बॉर्न इन अडल्ट 15 to 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है तो ये क्या होगा? आपका मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है। एंड चिल्ड्रेन जो 10 से लेकर के 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर ये हो रहा है तो ये मॉडरेट को इंडिकेट करेगा। एंड इनमें से इनके अंदर भीतर में बहुत सारा मतलब पार्ट छुपा हुआ है। मतलब ये परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, ये हम आगे चल करके देखेंगे। यहाँ पर एक है रूल ऑफ 9 फॉर सरफेस एरिया असेसमेंट एंड रूल ऑफ 1% फॉर फाल्म इन बॉर्न, ये लिखा गया है। ये फिगर मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, ये सभी चीज़ें मेंशन है। नाउ मॉडरेट के केस में ये आ गया। माइनर एक होता है, माइनर। माइनर में एक होता है फिर माइनर बॉर्न, कैन बी मैनेज्ड इन हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। सी माइनर बॉर्न। आपको माइनर बॉर्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हो आप। ठीक है। माइनर बॉर्न जो होता है वो जनरली हॉस्पिटल में मैनेज हो सकता है, क्लिनिक्स में आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। इसमें जनरली आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं ना। क्रिटिकल्स के अंदर हमने जो पढ़ा था, क्रिटिकल अगर इंडिकेट ये कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जनरली क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बॉर्न इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मतलब हमें करना क्या है। तो अगर क्रिटिकल को ये इंडिकेट करेगा तो एडमिट और रेफर्स टू अप्रोप्रिएट बॉर्न यूनिट। तो ये जनरली डॉक्टर का काम है, आपका तो काम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, एडमिट एंड रेफर टू अप्रोप्रिएट बॉर्न यूनिट। तो हमारे पास बॉर्न यूनिट भी होता है। ठीक है, मतलब पढ़ाई करने का मतलब ये एक फ़ायदा होता है कि आपको कम से कम ये अवेयरनेस होता है कि हमारे पास बॉर्न यूनिट होता है। बट आपके देश में या फिर आपके प्रोविंस में या आपके स्टेट में कहाँ पर बॉर्न यूनिट होता है, भले ही उस जगह का नाम पता ना हो, लेकिन एक तो पता चल गया कि बॉर्न यूनिट होता है। ठीक है। ट्रांसफर इन ए फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस विथ सिक्योर्ड एयरवे एंड सर्कुलेटरी सपोर्ट। तो जनरली आपका जो क्रिटिकल वाला जो पेशेंट आएगा उसको हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना है। ये रूल नंबर 1 है एंड ये गोल्ड स्टैंडर्ड रूल है कि आपको हमेशा जितना, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन आ गया, तो क्रिटिकल अगर आ रहा है तो पहला रूल है कि आपको तुरंत पेशेंट को एडमिशन करना है। बट यहाँ पर और स्पेशली कहाँ पर, बॉर्न यूनिट पर, ये जनरली डॉक्टर का काम है, वो रेफरेंस देंगे वो। ठीक है, ये उनका मैटर है, ये उन्हें पता है बॉर्न यूनिट कहाँ पर होता है, ये उनका काम है। लेकिन हम ये पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। सो जनरली ऐसे पेशेंट को किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि आप तो बॉर्न यूनिट जाओगे, क्रिटिकल पेशेंट आप हो,
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि बीच में जाते वक्त आप शायद मर जाओ, ऐसा हो सकता है। तो ट्रांसफ़र इन ए फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस, मतलब ऐसा एम्बुलेंस जिसमें सिक्योर्ड एयरवेज होना चाहिए एंड सर्कुलेटरी सपोर्ट जितने भी होता है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स हो गया, बहुत सारे चीज़ हो गया जो सर्कुलेटरी सपोर्ट के अंदर आता है, सिक्योर्ड एयरवेज, तो उन्हें प्रॉपरली इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इतना फास्टर ट्रीटमेंट या बेसिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को पहुंचने से पहले होना चाहिए ना। उसके बाद ये करने के बाद और क्या करेंगे, फ्लूइड का रिससिटेशन किया जाएगा। ठीक है, बॉर्न एरिया ओवर 15% जो कि एडल्ट के क्षेत्र में, ओवर 10% है जो कि चिल्ड्रेन क्षेत्र में। इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल बॉर्न, मतलब आइज में हुआ है या फिर एयरवेज में हुआ है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन करोगे, मतलब जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होगा। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल भी आपको करना है। ठीक है, नाउ उसके बाद आपका काम होता है टॉपिकल बॉर्न ट्रीटमेंट, क्योंकि बॉर्न सबसे पहले कहाँ पर दिखता है, हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सा में। तो ऊपरी हिस्सा में अगर कोई चीज़ बॉर्न हो रहा है तो इसके लिए टॉपिकल बॉर्न ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। एंड एस कैरोटोमी, ESCHAROTOMY, escharotomy as an emergency procedure followed by escharotomy in case of a circumferential burn in extremities और एक्सट्रीमिटीज मतलब लोअर हो गया, हायर हो गया, और चेस्ट वाल मतलब आपके सीने वाला पोर्शन। केसेस which need for more than 2 weeks until healing consider surgical treatment। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई केस हील होने के लिए 2 सप्ताह से ज़्यादा लगेगा तो इस क्षेत्र में आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करना आपका पहली प्रायोरिटी बन जाएगा। नाउ मॉडरेट, एक होता है मॉडरेट, मॉडरेट के केस में जो आपका सेकेंड एंड थर्ड डिग्री जो बॉर्न होता है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, पढ़ा था कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री जो बॉर्न होता है वो जनरली मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। एंड एडल्ट के क्षेत्र में 15 से लेकर के 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, एंड चिल्ड्रन के क्षेत्र में 10 से लेकर के 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो मॉडरेट का जो केस आएगा वो हॉस्पिटलाइज्ड केस माना जाएगा, मतलब कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, बट क्रिटिकल जो केयर होता है, क्रिटिकल जो बॉर्निंग केस होता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड बॉर्न केयर यूनिट होता है, वहाँ पर जनरली उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड वहाँ पर जनरली वो देखेंगे कि 2 वीक से अगर हील होने के लिए लगेगा, अगर डॉक्टर ये मतलब अनुमान करेगा कि ये पेशेंट को 2 वीक से ज़्यादा लगेगा हील होने के लिए, देन डॉक्टर कंसिडर करेगा कि सर्जिकल प्रोसीजर के तहत हमें जाना चाहिए। ठीक है, एंड माइनर के केस में मैंने बताया था कि माइनर बॉर्न अगर होगा तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल अगर तक आप पहुंच गए हो तो इन्फेक्शन कंट्रोल में ये सारा चीज़ करना पड़ेगा, मतलब टॉपिकल बॉर्न ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एस्कैरेक्टोमी जो होता है एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, फॉलोड बाय एस्कैरोटोमी। ठीक है, एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलोड बाय कैरेक्टोमी इन केस ऑफ सर्कमफेरेंशियल बॉर्न इन एक्सट्रीमिटीज एंड चेस्ट वॉल, तो वो डॉक्टर का काम है। इनका जो केस होता है विच नीड मोर देन 2 weeks until healing
कंसिडर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो 2 वीक से अगर ज़्यादा होगा तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट लेआउट। मैंने तो ये बता करके बोल दिया। आई होप आपको ये फिगर पता नहीं तो फिगर बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बॉर्न इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। हम हमने प्रीवियसली बात किया था कि एक टेबल 2.3 है जहाँ पर बॉर्न के क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सिवियरिटी, मतलब बॉर्न के सिवियरिटी के अनुसार बॉर्न का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। now सिवियरिटी में आपके पास 3 क्लास है, एक होता है माइनर, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है क्रिटिकल, ठीक है। अभी अभी में हमने पढ़ा था। माइनर में जो क्या होता है, टू बी ट्रीटेड ऑन आउट पेशेंट बेसिस, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में माइनर केस को हैंडल किया जा सकता है। मॉडरेट क्या होता है, रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द रिससिटेशन एंड एक्ससिजनल थेरापी, ठीक है। एंड क्रिटिकल जो होता है वो इमीडिएट रिससिशन, हठात, मतलब आपको उसमें डिले नहीं करना चाहिए। एंड इसमें 2 कैटेगरी आएगा, एक चिल्ड्रेन के लिए आएगा, एक अडल्ट्स के लिए आएगा। पहले देखेंगे हम सिवियरिटी में माइनर केस को, ठीक है। माइनर केस में आपका चिल्ड्रेन का जो पार्शियल थिकनेस, चिल्ड्रेन के अंदर भी आपका 2 सब कैटेगरी है, एक होता है पार्शियल थिकनेस, एक होता है फुल थिकनेस। ना पार्शियल थिकनेस में अगर ये लेस दैन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ रहा है एंड फुल थिकनेस आपका कितना है वो शायद आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब फुल थिकनेस नहीं है शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अगर लेस दैन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर पार्शियल थिकनेस चिल्ड्रेन के अंदर आता है तो ये माइनर केस समझा जाएगा, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट अगर 10 से लेकर के 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड फुल थिकनेस जो होता है वो 1 से लेकर के 3% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर आ रहा है तो ये मॉडरेट को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से क्रिटिकल जिसमें इमीडिएट रिससिटेशन होता है, इसमें चिल्ड्रेन की अगर हम बात करेंगे तो पार्शियल थिकनेस होगा ग्रेटर देन 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड फुल थिकनेस जो होगा वो ग्रेटर देन 3% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। नाउ कमिंग टू द अडल्ट, तो अडल्ट में माइनर अगर हम देखेंगे वही अडल्ट में पार्शियल थिकनेस आएगा एंड फुल थिकनेस भी आएगा। तो लेस दैन 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर आ रहा है तो एंड फुल थिकनेस अगर लेस दैन 2% टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ रहा है तो ये माइनर को इंडिकेट करेगा। उस हिसाब से अगर 15 से लेकर के 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया आपका पार्शियल थिकनेस आ रहा है एंड आपका फुल थिकनेस 2 से लेकर के 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ रहा है तो ये मॉडरेट को इंडिकेट करेगा। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए 25% ग्रेटर दैन 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर आ रहा है एंड फुल थिकनेस आपका ग्रेटर दैन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ रहा है तो ये आपका क्रिटिकल सिवियरिटी बॉर्न को इंडिकेट करेगा। नाउ TBSA मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड यहाँ पर जो दिया गया है क्रिटिकल के अंदर एक स्टार मार्क दिया गया है जिसका मीनिंग है इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रिकल बॉर्न, जितने भी इलेक्ट्रिकल बॉर्न होता है वो क्रिटिकल जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, जितने भी केमिकल बॉर्न होता है, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल बॉर्न, all type of chemical born, all type of respiratory born and born associated with other injury जैसे कि ऑर्थोपेडिक इंजुरी, चेस्ट इंजुरी, एब्डोमिनल इंजुरी, हेड इंजुरी, ये जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड है हमारे बॉडी में जो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, अगर वहाँ पर कोई इंजुरी आ गया, जैसे आई हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा नेक हो गया, हमारा माउथ वाला, फेस वाला,
या फिर हमारा चेस्ट वाला, ग्रोइन वाला एरिया, ऑल टाइप ऑफ जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है, केमिकल बॉर्न जितने भी होता है, ये सारे के सारे कहाँ किस कैटेगरी में आएंगे? नो डाउट आंख मूंद करके ये क्रिटिकल ही होगा। एंड क्रिटिकल जब होता है, कंडीशन क्या होता है अडल्ट के क्षेत्र में कि पार्शियल थिकनेस आएगा ग्रेटर देन 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड फुल थिकनेस आएगा ग्रेटर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एक अच्छा, आपका जो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल आपका हो जाएगा 9%, ठीक है। एंड यहाँ से लेकर के ये जो पूरा हाथ है ये हमारा कितना हो जाएगा? 9%, ठीक है। एंड आपका जो दोनों लेग्स है ये आपका लेफ्ट और राइट लेग, ये दोनों 18-18, इधर 18, इस साइड में भी 18, समझ रहे हो? एंड इस साइड आपका 9 हो जाएगा, इस साइड आपका 9 हो जाएगा। आपका ये जो फ्रंट होता है, मतलब यहाँ से लेकर के आपका जो ग्रोइन पेनिस वाला रीजियन से ऊपर वाला हिस्सा, मतलब आपका एब्डोमिनल एंड चेस्ट एरिया, ठीक है, वो आ जाएगा फ्रंट का 18, बैक का 18। एंड आपका जो जेनाइटल एरिया, जो मतलब पेनिस वाजाइना, ये वाला जो एरिया होता है ये 1% है, ठीक है। ये एक अडल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। चाइल्ड, फॉर एवरी ईयर ऑफ लाइफ आफ्टर 12 month taking 1% from the head and add half percentage to each leg until the age of 10 year when the child reaches adult proportion, ठीक है। फॉर एवरी ईयर, हर साल, ऑफ अ लाइफ आफ्टर 12 month, 12 मंथ बाद, टेक 1% फ्रॉम द हेड एंड टेक from the head, take 1% from the head for every year of life आफ्टर 12 month, 12 मंथ हो जाने के बाद, टेक 1% फ्रॉम द हेड, हेड से 1% एंड एड हाफ परसेंटेज to each leg until the age of 10 year when the child reaches adult proportion। तो हेड हो जाएगा 18%, फ्रंट में 18, बैक में भी 18, मतलब अडल्ट वाला सिनारियो, ठीक है। इधर 9 हो जाएगा, इधर 9, एंड आपका लेग जो होता है वो हो जाएगा कितना? 14%, दोनों लेग 14%। एंड आपका जो होता है पाम, ये वाला पाम जो होता है ये आपका 1% आएगा। ना ये कहानी क्या है? रूल ऑफ 9 फॉर सरफेस एरिया असेसमेंट एंड रूल ऑफ 1% फॉर पाम बॉर्न। पाम में जो भी बॉर्न होता है उसे हम 1% कहेंगे। फ्रंट में अगर अडल्ट की बात करेंगे तो 18%, बैक में भी 18%, ठीक है। एंड चाइल्ड के क्षेत्र में ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। द बॉर्न एरिया में बी केप्ट अंडर रनिंग टैप, द बॉर्न एरिया में बी केप्ट अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर अराउंड, ये नॉर्मल जल जो आता है घर में, जो जल होता है ना, उसी को आप यूज कर सकते हो। फॉर अराउंड कितना समय के लिए? 10 से लेकर के 20 मिनट्स के लिए।
और until द पेन डिक्रीजेस। ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है कि पेशेंट को ये जो बर्न होने के बाद वो जो स्मेलिंग आता है ना, तो उससे पेशेंट को इरिटेट फीलिंग होता है एंड उसका अदर क्लिनिकल कॉज भी होता है। और दूसरा क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हमें 37 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए ये सब किया जाता है, ठीक है। सो द बॉर्न एरिया में बी केप्ट अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर अराउंड 10 से लेकर के 20 मिनट, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर बॉर्न हुआ है, और ये किस टाइप के बॉर्न के लिए? आपके थर्मल बॉर्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पानी 10 से लेकर के 20 मिनट तक, मतलब लगभग अगर कहें तो हाफ एन आवर, ठीक है, 10 से लेकर के 20 मिनट तक आपको पानी यहाँ पर मतलब ठंडा पानी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ऑनटिल द पेन डिक्रीजेस, इसका मेन उद्देश्य पेन, क्योंकि नॉर्मल वाटर क्या होता है, कोल्ड इन नेचर। तो जब आप ये करोगे तो पेशेंट को वो जो पेन का जो फीलिंग होता है वो थोड़ा राहत देगा, ठीक है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड कूलिंग विथ वाटर बिकॉज इट विल लीड टू हाइपोथर्मिया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब आध घंटे से ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट्स भी नहीं दिया गया है, 10 से लेकर के 20 मिनट तक दिया गया है। तो 30 मिनट भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अवॉइड प्रोलॉन्ग कूलिंग विथ वाटर। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको पानी मतलब ढालते रहना है, ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर ये करोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, इट विल लीड टू हाइपोथर्मिया, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने पानी क्यों डाल दिया था कि पेन कम हो जाए, बॉर्न सेंसेशन उसको ना आए। दूसरा, पानी देने से उसका उसको एक सूथिंग इफेक्ट मिलेगा, इसलिए हमारा उद्देश्य है। एंड हमारा उद्देश्य और क्या था कि बॉडी टेम्परेचर को बैक टू द नॉर्मल करना था, बस दिस इज़ द प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल अचीव हो जाने के बाद आपको और कुछ करना नहीं है। इमर्स द बॉर्न एरिया इन कोल्ड वाटर और कूलिंग इट विथ ए कूलिंग कोल्ड कंप्रेस। मतलब आपको ठंडा थोड़ा देना पड़ेगा। नेवर पुट आइस ऑन द बॉर्न बिकॉज वेरी कोल्ड वाटर may lead to hypothermia, especially in infant and small children. इमर्स द बॉर्न्ड एरिया, मतलब जिस जगह पर आपको बॉर्निंग हो चुका है वहाँ पर कोल्ड वाटर देना पड़ेगा। कोल्ड वाटर या फिर जो कूलिंग वाला जो कंप्रेस है, ठीक है, आपको थोड़ा कूलिंग कंप्रेशन देना पड़ेगा। कूलिंग इट विथ कोल्ड कंप्रेसेस थोड़ा देना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नॉर्मल जो आइस होता है वो सीधा लेकर के बॉर्न एरिया में मतलब लगा दो, ये कभी आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वेरी कोल्ड वाटर में लीड टू हाइपोथर्मिया। अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग से चलेगा, तो इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्टे विथ नॉर्मल डायग्नोसिस, ठीक है। स्पेशली इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, खास करके किसके लिए? इन्फेंट जो होता है, मतलब 1 मंथ से लेकर के आपका कितना 12 मंथ तक जो बेबीज होते हैं। चिल्ड्रेन मतलब आपका 5-10 साल वाला जो जितने भी ये होते हैं वो चिल्ड्रेन अप टू 10 to 12 ईयर तक। एंड हमारा जो अडल्ट एज वो कितना है, 12 से लेकर के 14 साल। मतलब आपका जो अडोलसेंट पीरियड है, अडोलसेंट पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 साल से लेकर के आपका 18-19 साल। तो उसी को उस अडोलसेंट टाइम एज को हम अडल्ट डोज के तरह देखते हैं। बट कंडीशन ये है कि अडल्ट डोसेज तभी दिया जाएगा जब पेशेंट का बॉडी वेट कम से कम आपका 40 kg या फिर 50 kg होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होगा।
तो पता चल गया, बर्न होने से आपको कभी भी उस एरिया में आइस, डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ आइस आपको नहीं लगाना है। मान लीजिए ये एक आइस है और इस एरिया में हमारा बर्न है, ये आइस है, तो इस आइस को इधर नहीं रखने का, गोल्ड स्टैंडर्ड रूल। नाउ अच्छा, और ख़ास तौर पर ये जो आइस की बात मैं कर रहा हूँ, ख़ास तौर से इन्फेंट, इन्फेंट मतलब आपका 1 मंथ से लेकर के आपका 12 मंथ तक जितने बच्चे हैं, एंड चिल्ड्रेन मतलब आपका 10-12 साल तक, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको चिल्ड्रेन कहा जाता है। तो इससे बच्चों को खास करके आइस नहीं लगाना है। हालांकि एडल्ट केस में भी आइस नहीं दोगे, लेकिन जो स्पेशल फोकस होता है वो चिल्ड्रन और इन्फेंट के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। If there has been a delay in starting cooling, this should still be started up to 3 hours after injury. Do not cover the patient with a blanket. Do not cover the patient with a blanket. Blanketed advice only to the extinguish fire. ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी का मतलब पूरा शरीर ऐसे जल रहा है, उस क्षेत्र में ब्लैंकेट एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी बॉर्न है, उसके बाद आप अगर ब्लैंकेट करोगे तो फिर बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर ऑलरेडी, कोई मान लीजिए जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, मतलब किसी को ऊपर पेट्रोल पका करके उसे फायर दे देते हैं, तो उसका बॉडी क्या होता है, पूरी तरह से जल जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ब्लैंकेट एडवाइजेबल है। बट ये नहीं कि मान लीजिए कोई पेशेंट ऑलरेडी बॉर्न है एंड वो हॉस्पिटल, या फिर आप उसे हॉस्पिटल ले रहे हो तो ब्लैंकेट आप उसके ऊपर रखो, नहीं। पहला जो चीज़ आपको करना है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये हॉस्पिटल को पहुँचने से पहले की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो जो भी ऑर्नामेंट लगाएगा, मान लीजिए लेडीज अगर होगा तो लेडीज़ क्या करते हैं, यहाँ पर नेकल्स वेकल्स पहनते हैं, तो आपको सारा चीज़ हटा देना है, ठीक है। जितने भी कोशिश करो, जितना चीज़ हटा सकते हो हटाओ, वरना अगर नहीं हटा सकते हो तो वो मेडिकल में जा कर के वो लोग हटा लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम इतना कोशिश करना है कि सादा सीधा ड्रेस मतलब उसको पहना दो, और ऐसा नहीं कि जो टाइट जीन्स ऐसे जो पहनते हैं वो सब हटा दो, ठीक है। मतलब पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में आना चाहिए, इसका मेन उद्देश्य यही है। कवर द बर्न्ड एरिया विथ ए स्टेराइल गॉज, बैंडेज और क्लियर क्लॉथ। आप क्लॉथ से भी कर सकते हो, लेकिन वो साफ होना चाहिए, या फिर स्टेराइल गॉज जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी मिलता है। डू नॉट यूज फ्लॉपी कॉटन्स आज इट में इरिटेट द स्किन, ठीक है। फ्लॉपी क्लॉथ कॉटन आपको यूज नहीं करना है, जो भी करना है फ्रेश क्लॉथ यूज करना है। रैप द गॉज लूजली टू अवॉइड पुटिंग प्रेशर ऑन द wound. Bandaging the burned skin keeps air away from the injury, ठीक है। मतलब बहुत लूजली आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करना है, बहुत लूजली आपको गॉज को टाइट करना है, ठीक है। लूजली हम क्यों करते हैं? क्योंकि बॉर्न के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले से बॉर्न हुआ है, तो पेशेंट को अगर प्रेस दे करके अगर हम बैंडेज करेंगे तो फिर क्या होगा, गॉज को अगर ठीक से प्रॉपरली अगर टाइट करके अगर हम देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा इरिटेट फील होगा एंड पेशेंट को अल्टीमेटली पेन भी फील होता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है। राइट, स्लाइट मतलब रैपिंग आपको उसको करना है, मतलब जैसे पेशेंट कंफर्टेबल महसूस कर सके। डू नॉट ब्रेक और प्रिक ब्लिस्टर, जो भी ब्लिस्टर आ गया है उसको आपको ब्रेक नहीं करना है एंड प्रिक नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई हाउस होल्ड रेमेडी
और टॉपिकल एजेंट सच एज पेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, हल्दी आपको खास करके नहीं देना है, टर्मरिक हो गया, रॉ कॉटन हो गया ऑन द बॉर्न एरिया आज इट हैम्पर्स क्लिनिशियन असेसमेंट ऑफ डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ अ बॉर्न। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं बॉर्न होने के बाद वो अपना मतलब हम देसी भाषा में एक कहते हैं ना मतलब डॉक्टर मत बनो, ऐसा कहते हैं ना, तो वो इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर मत बनो। ठीक है, मतलब आप पेस्ट लगा लेते हो, ऑयल लगा लेते हो, हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, और रॉ कॉटन जो होता है मतलब वो सीधा लेकर के रॉ कॉटन ले लेंगे, तो वो आपको कम से कम नहीं करना है। ठीक है, ऑन द अच्छा ये चीज़ अगर आप करोगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे ये प्रॉब्लम होगा जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जो क्लिनिशियन होगा खास करके जो डॉक्टर होंगे उन्हें ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि इसका डेप्थ क्या है, इसका इंटेंसिटी कितना है और इसका सिवियरिटी कितना है, उन्हें असेसमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपको पहले मतलब नहीं करना है। ऑल्सो इट्स रिमूवल मे बी पेनफुल एंड ट्रामाटाइज द बॉर्न वुंड फर्दर। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर को बाद में जाकर के बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप हल्दी लगाओगे, आप कॉटन लगाओगे, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ उस स्किन के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने से उसे बाद में क्या करना पड़ता है, ड्रेसिंग फ्रेसिंग ये करना पड़ता है, सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। मेजर बॉर्न के लिए कॉल फॉर इमरजेंसी और मेडिकल असिस्टेंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो कि ईएमएस होता है 1092 102 108, तो इसमें आपको फ़ोन लगाना है और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के तहत आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना है। ऑन्टिल एन इमरजेंसी यूनिट अराइव्स फॉलो 3 दीज स्टेप्स। पहला, checks for sign that the person is alive such as heartbeat, breathing, coughing, movement. If such sign do not exist, अगर पेशेंट का हार्ट बीट नहीं चल रहा है, हार्ट बीट कैसे मतलब पॉल्स फॉल्स, यहाँ पर थोड़ा पॉल्स फॉल्स चेक करना आपको पड़ेगा। ब्रेथिंग मतलब यहाँ पर उसका आप ये जो स्किन होता है ये वाला नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पेशेंट को ऐसे इनहेल एक्सेल ऐसे करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस नहीं है तो आप दिल की धड़कन थोड़ा यहाँ पर फील कर सकते हो। तो ऐसे नॉर्मल जो बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, कॉफिंग पेशेंट खांस रहा है या नहीं खांस रहा है, मूवमेंट पेशेंट का हाथ थोड़ा बहुत हिल रहा है क्या नहीं भी हिल रहा है, तो ये जो कॉमन साइन होता है इसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, if such sign do not exist, begin CPR। सी सेक्शन ऑन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब हार्ट के ऊपर ऐसे दे करके पुश करना है। कितनी बार पुश करना है, कम से कम 120 बिट्स 120 बार प्रेस करना है पर मिनट में, एंड ये जोर जोर से ऐसे 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 करके मतलब प्रेस करना है। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हो गया। लुक फॉर एविडेंस, अच्छा ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से करना है भी ये। ठीक है, लुक फॉर एविडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, लुक फॉर एविडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड स्मोक इनहेलेशन इंजुरी, ए कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट बॉर्न विक्टिम। एक्यूट जो बॉर्न विक्टिम में, ठीक है, आपका जो स्मोक इनहेलेशनल इंजरी से बहुत लोगों की जान गई है। ठीक है, तो ये भी आपको मतलब एक बार देखना है कि
पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सीधी भाषा में अगर बोलूं तो पेशेंट इनहेल एंड एक्सेल कर पा रहा है या नहीं। और एक चीज, laryngeal edema can develop suddenly and unexpectedly। ठीक है, laryngeal edema can develop suddenly and unexpectedly। remove rings, bracelet and other potential constricting article। जो बॉर्न मेजर बॉर्न के केस में जितने भी आपका मान लीजिए रिंग होगा, ठीक है, जो रिंग आप पहनते हो या ब्रेसलेट हो गया जो यहाँ पर लगाते हो, जितने भी रिंग हो गया, यहाँ पर रिंग बहुत सारे पहनते हैं, ठीक है, एंड अदर पोटेंशियली कंस्ट्रिक्टिंग आर्टिकल जो भी आप मतलब पहनते हो उसे पूरा हटा दो। ठीक है, जितना हटा पाओ उतना हटाओ। ठीक है, do not remove burned clothing adherent to the skin। do not remove burned clothing adherent to the skin। स्किन के साथ मान लीजिए उसका जो बर्निंग वाला जो क्लॉथ है जो ऑलरेडी चिपक गया है उसको आपको नहीं हटाना है। ठीक है, however do ensure that the victim is no longer contact with burning material or exposed to smoke or heat। do not immerse victim with critical large burn in cold water। doing so may cause shock। avoid hypothermia। keep the person with burn as well as warm as possible। अवॉइड हाइपोथर्मिया, बॉडी के टेम्परेचर डाउन हो जाने को बोला जाता है हाइपोथर्मिया। ठीक है, सो इसको अवॉइड करना है। कीप द पर्सन विथ बॉर्न आज वार्म आज पॉसिबल। कीप द पर्सन विथ बॉर्न आज वार्म आज पॉसिबल, मतलब बर्निंग पेशेंट को थोड़ा बहुत वार्म भी चाहिए। If the area of a burn is large after it has been doused with cold water, doused with cold water, apply clean wraps around the burned area or whole patient to prevent systemic heat loss and hypothermia। Hypothermia is a particular risk in young children। do not cover patient with a blanket। Transportation of a burn victim should be done as quickly as possible in ACLS ambulance, मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि 1092 को कॉल करो, 102 को कॉल करो, 108 को भी कॉल करो, सो दैट द गोल्डन पीरियड ऑफ रिससिटेशन इज नॉट वेस्टेड। देन एट द साइट ऑफ इंजुरी make all attempts to maintain the airways। at the site of injury make all attempts to maintain the airways। जिस साइट पे इंजुरी हुआ है make all attempts to maintain the airways। always rule out head injury, cervical spinal injury, other limb injury before transportation। if any of these is present, shift with adequate precaution in the form of cervical brace, limb splint, etc। keep patient well covered during transportation, especially infant and children, do to avoid excessive heat loss and resulting hypothermia।
डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ एक्सेप्ट इन माइनर बॉर्न। माइनर बॉर्न हमने पढ़ा था, 3 कैटेगरी है, क्रिटिकल एंड मॉडरेट एंड हो गया आपका माइनर बॉर्न। तो माइनर बॉर्न को छोड़ करके बाकी जितने भी बॉर्न होते हैं, डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ एक्सेप्ट इन माइनर बॉर्न। माइनर बॉर्न में आप खाने के लिए कुछ दे सकते हो, बट अगर मेजर बॉर्न अगर हो रहा है, मतलब सेकेंड डिग्री बॉर्न, थर्ड डिग्री बॉर्न, ठीक है, फोर्थ डिग्री बॉर्न, 4 कैटेगरी के बॉर्न होता है। तो सेकेंड से लेकर के फोर्थ डिग्री जितने भी बॉर्न होते हैं वहाँ पर माउथ से कुछ भी खाने के लिए मत दो, ठीक है। इमीडिएट रिससिटेशन एंड केयर इन हॉस्पिटल। क्लियर द एयरवेज को क्लियर करो। रूल आउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंजरी, मतलब इनहेलेशनल इंजरी कुछ है या नहीं। इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन ए क्लोज्ड स्पेस, फेशियल बॉर्न, सिंगेजिंग ऑफ आईब्रोज, nasal hair or respiratory distress, hoarseness of a voice or stridor, altered consciousness or shoot in sputum. Keep endotracheal tube ready by bedside in case of airways borne. Check for breathing and circulation and provide support. Rule out other associated injury. During examination, obtain a quick and short history how the burn occurred from the patient or accompanying person. Triage should be conducted at the accident site before transporting patient to the appropriate medical facility. In the event of a large number of workers being burned, such as in a cylinder or boiler blast in a firecracker factory or mass disaster, example cinema theater, marriage pandal on fire, triage becomes critical to prioritize treatment and transport based on the severity of injury and the likelihood of the survival. All accidental burn should be registered and suicidal and homicidal burn should be registered as a medico-legal cases. Females in the reproductive age group must be made medico-legal case. Females in the reproductive age group must be made medico-legal case. Unnatural death with 7 years of marriage requires investigation by the police. अननेचुरल अगर किसी का डेथ हो रहा है, ठीक है, मतलब जो नेचुरल नहीं है, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब आपने आज मैरिज कर लिया और 7 साल के बाद अगर आपका डेथ अननेचुरल है, किसी ने आपको अटेम्प्ट किया है मर्डर करने के लिए और उसके चलते आपको बॉर्न हो गया है, तो हमेशा इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ही करेगी। तो आज तो बॉर्न के ऊपर बहुत सारे और भी पढ़ नहीं पाए, ठीक है, तो बाकी बहुत सारे हैं। बॉर्न्स के टाइप होते हैं, ठीक है, बॉर्न ऑफ स्पेशल टाइप है, उसमें इलेक्ट्रिकल बॉर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे देना है, क्या करना है, एक बार पढ़ करके तो समझ में नहीं आने वाला है, तो इसे बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, और कईयों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं जानते हैं वो जानेंगे ज़रूर, लेकिन जान करके ही रहेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाता है, ठीक। लेकिन एक चीज़ पढ़ करके जो समझ में आया कि आपको करना क्या है। देखो, करना जो क्या है उसमें आपको बहुत कुछ नहीं है, मतलब जो स्वाभाविक चीज़ है वो ही करना है। लेकिन इस स्वाभाविक चीज़ में एक गलती लोग कर देते हैं, क्या करते हैं, बॉर्न वाला पार्ट में वो क्या करते हैं, आइस दे देते हैं,
जो कि आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया अगर हो जाएगा इसका कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा। और दूसरी जो चीज़ लोग गलती करते हैं, ज़बरदस्ती मान लीजिए किसी एरिया में बॉर्न है एंड उसका क्लॉथेस जो पेशेंट पहनता है वो अगर टाइटली उस बॉर्न एरिया वो स्किन के साथ अगर अटैचमेंट हो गया तो लोग क्या करते हैं, उसमें पानी दे करके ज़बरदस्ती वो चीज़ को हटाते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को क्या करोगे, अगर जो चीज़ लगा गया है वो चीज़ वहाँ पर लगने दो, कोई चिंता नहीं। आपको बस क्या करना है, जितना साफ सफाई थोड़ा बहुत आप कर सकते हो करो, उसके बाद तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करो। जो भूल लोग एक आम पब्लिक करता है वो सिर्फ आपको जानना है, आइस कभी नहीं करना है। दूसरी चीज़, माइनर बर्न को छोड़ करके, मतलब थोड़ा बहुत बर्निंग हो गया उसको छोड़ करके अगर कोई मेजर बर्न हुआ है, खास करके मेजर बर्न, तो पार्टी के माध्यम से जो खाद्य दिया जाता है उसको कभी नहीं देना है। ये होता है थंब रूल, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, एंड बाद में बाकी हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस सिस्टम जो होता है वो जानते हैं अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें जितना गाइडेंस दिया जाता है, मान लीजिए कोई फ्लूइड चढ़ाना हो या कुछ करना हो, वो लोग वो काम कर लेंगे। लेकिन आपका जो काम है, नॉर्मल पब्लिक का जो काम है वो इतना है जो आपको मैंने बताया था, एंड उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, ज़्यादा मतलब जो नेकल्स पहनता है उसको हटा देना है, और ब्रेसलेट जो भी आपका लेडीज जो चूड़ी फूड़ी पहनते हैं, अगर आप जितना कर सकते हो हटाने के लिए हटा दो, उसके बाद हॉस्पिटलाइज कर दो। तो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग स्टडी सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।